you? So let me start with a little bit about myself. Born and brought up in a Fauji family. My father was in Indian Air Force. So jab hosh sambhale, so I was in Assam in the cantonment Oh, area. That's where I started understanding what life is all about. But then why I always talk about this piece or this time of my life, because it has mm-hmm. made me what I am today as a person. You know, the disciplined environment, very less choices. While at that point of time, everybody had very less choices. Doordarshan was the only channel. So do we all Fajis had, but then otherwise also we had very limited choices because we were living in cantonments far away from the cities. Mm. And then, of course, at a very early stage of life, we were exposed to multicultural settlements. No? In the cantonment, you will find your neighbor is from some other state. The cuisines, the festivals, and everything was celebrated with all Josh and fervor. I think those things were very important in shaping my personality today, making me, in real sense, a very inclusive mindset personality. Now, Okay. able to understand different perspective, very, very considerate about people around you, very considerate about thoughts these people have, and adaptability, which these days is required. And I will talk about that piece also during our podcast. That adaptability these days, neither the corporate believes that adaptability is something which is of a great importance. Mm-hmm. Neither people believe that, no, I am not adaptable. I want job in NCR only, so NCR only. The whole life I will be in NCR, or the whole life I will be working in an IT organization only. True. Corporates also believe that we only need IT people, no other experience. So that's how been my upbringing in a very disciplined environment. And Mm-hmm. then after that, as any other youth, I had nothing in mind. Now, whatever was coming my way, I was picking it up. My elder brothers both became doctors, so I had a basic choice. Default choice is that I also have to become a doctor. And at that point of time, three things were always offered by the elders as a wisdom: is that doctor, vakil, or engineer. No, these are और the three आर्मी things. आर्मी नहीं था उसके अंदर आई थॉट आर्मी Army वाला होगा. tha, but then I had my specs uh, diagnosed at a very early age. I was in, I think, third standard or fourth standard. So I was diagnosed with this by birth eyesight problem. So then that dream was shattered very early in my career for myself. My brother did serve Indian Army for Oh, nice. short service commission, but then I never then thought in that direction, and I thought, okay, let me become engineer or doctor. The first choice was doctor. I became an engineer because medical I couldn't clear, and then after that engineering, I thought that let me now pursue further masters in engineering, but that I happened to do MBA. And then at that point of time, MBA, I thought maybe let us do in something which is very, very lucrative, which is marketing or sales at that point of time. But then I Hmm. landed in human resources. Okay. And then after 2 years of human resources in Symbiosis Pune, I think that was the period which changed my personality completely. And I will ever be thankful to my friends there, my classmates there. Mm-hmm. Who all of them in fact were my gurus there, because I was learning everything from them. कपड़े Okay. पहनने के तरीके से लेकर how to talk, how to communicate, how to go around, how to wear, what to wear. I think Hmm. as an middle class person, and then coming from Sonipat, Haryana as a mechanical engineer, was not exposed to this brighter side of professional life. And True. Pune as a city exposes you to everything. And then, of course, in terms of communication, in terms of overall personality, was coming from a very basic, humble background. And then, that polishing, those 2 years actually polished me a lot. And each one of my batchmate there is responsible for that. I will via this podcast also, I remember my batch of 2006 and thank everyone. And after that, I thought, now let me start with a very, very professional organization. And that point of time, ICICI or maybe banking Mm-hmm. organizations or IT organizations were the destination, because they were coming Right. for the campus and all. So everybody wanted to be there.
Uh, Mm-hmm. but then I landed myself in JSW Steels Limited, which is a manufacturing setup. And till then, I think I had no idea, no thoughts about my career in which direction I want to take it up. At that point of time, I only wanted a placement, I wanted a job so that I can pay back my education loan. But then after that, when I started earning, there is something which changed. No, one fine day you become a father and then suddenly something changes in you. The same thing happened when I started working. I started earning, and that's where somewhere I always believe that Almighty's plan is always better than your plan. Correct. There I landed with a combination of engineering and MBA, and that's where I think he landed me at a fantastic spot where Mm. Janesh, believe in me, I will put you in a spot where your learning curve is going to be something which, when after 20 years from today, you look back, you will be thankful. And today I am at that situation. I'm very, very thankful for whatever happened in my life. There have been ups and downs, but then all of them was worth. I got married to my management trainee peer from JSW Steels. That's where I met my life partner. Now, but today I have two lovely kids. My daughter, she is studying law. My son, he is still a student. And I have four lovely pets, two dogs, two cats, all thanks Oh to wow. my daughter. And Mhm. now, today, I think I have also realized the importance of finding time for that little passion you have in your life. So I Mm-hmm. uh, liked to sing. Today, I find time to listen to music, to sing, to cook. Weekends or evenings, I always support my wife. My wife was also in human resources, but then she left corporate world, and today she is a yoga and meditation teacher. So I continue to live a fudgy life. Saturday, Sundays are the days to clean the house, put everything in order, whatever we could not do during the So that's weekdays. a habit, I guess, which is Yes, that's still the into habit. you. Make your bed is the kind of Mm-hmm. book I would recommend to everyone, and we follow the same life. We have been taught the same thing every day. The moment you get up from the bed, make your bed, and then do the morning chores, and then get into the habit. So Saturday, Sundays are all even more busy for the personal things and putting the house and your room in order. So that's a little bit about me. So if I start with the Janesh, if I start with your career thing, like so how did you think, or I will say कि आपको ऐसा जब आपने start किया था as a mechanical, have you thought कि आप CHR तक पहुंचोगे, and how was your journey, professional journey, I would say. See, at that point of time, तो उतना I would say the Mm-hmm. vision was not that big at all. Okay. No, the visibility of the future and thought about the future never existed. So उतना तो what would I say that bandwidth ही नहीं था, no, for the mind to Mm-hmm. think about that. And there are multiple reasons for that. No, I wouldn't say that everybody has that kind of thing. No, there are people who are much smarter who at very early in the career decides, and today even after engineering, True. people are entrepreneurs and they are starting their own ventures and all. They have much larger vision about their future, their careers. I did not have, and there could be Okay. multiple reasons. No, very very limited exposure to the external world. Hmm. No, internet was not available at that point of time. The only exposure was via friends and the community in which you live. And at that point of time, I believe that the community was only what was the college for me. No, the engineers who have also come from very tier two kind of cities, villages mostly, and I also came from Fauji cantonments area where newspaper, Rozgar Samachar, or maybe if you are lucky to afford some magazines, Business World at that point of time, so you may be, little more aware about what are the opportunities and what are the possibilities. At that point of time, I would be very open to tell you that opportunities or possibilities का तो ज्ञान ही नहीं था. At that point of Hmm. time, the only thing was that अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कुछ कमाने लग जाओ बस. You should start earning. Now, while my father gave all possible things what I required to be successful in life, but then somewhere there was a bandwidth choke for the awareness at the family level also कि और क्या possibilities हैं. और इंटरनेट की कमी के कारण तो then everything was dependent on your teachers, On your professors, circle. on the circle and all. So I think a lot of things did not go the way the generation is
lucky at this point of time to have a lot of information at the tip of their palm. फिंगर टिप्स पे जो आज पॉसिबिलिटीज हैं वो उस टाइम पे नहीं थी. दूसरा, आई थिंक द सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ हैव बीन दैट आई डिड नॉट इवन हैव द bandwidth to think at that level. पैसे आने लग जाएं, that was the only thing. मैं ओनली क्या थिंग आई गेस बताएं. लाइफ, हाँ लाइफ को हमसे सेटल कर लें, बाकी तो आगे देखी जाए. इट वाज जस्ट, बट अगर मैं बात करूँ सेम इसी चीज़ पे, बिफोर दिस आपने भी स्ट्रगल करके कि टाइम पे पढ़ते हैं, बट आज के टाइम पे जो जनरेशन है दे वांट इट फास्ट. अपना काम करते निकलते हैं अब फटाफट के. चैट जीपीटी, एआई ऑटोमेशन, राइट, पीपल हैव स्टार्टेड. जो एक काम कर रहा है उससे हमने एजेंट, ऑनेस्टली अपने एजेंट्स को काम पे लगाते हैं, खुद वो कुछ और चीजों पे. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी. Yeah. What will happen to those who don't understand it? And being into HR, what do you think कि कौन से HR के roles होंगे जो शायद अगले 5 साल में. Full question. I have a very different take on this whole piece. मैं कुछ अपने instances बताता हूँ life के जो who left with me with very deep thoughts. No, at one point of time I remember जब हम गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे ना, लाइट नहीं होती थी. So the dependency on electricity being there or not being there was zero. The life was fantastic. The evenings were good. The mornings were cooking, living your life, sleeping. Everything was very cool. But then slowly, electricity came, coolers came, television came, and we became their prisoners. Dependency on these things became so much कि लाइट नहीं होती तो पूरी रात सो नहीं पाते. करेक्ट, नहीं सो पाते. लाइट नहीं होती तो इवनिंग में एंटरटेनमेंट क्या होगा वो नहीं हमको मालूम. सो हाथ खाली हो जाते हैं. हाथ खाली हो जाते हैं, दिमाग खाली हो जाता है. यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू. सो टुडे no, you can't imagine if you do not have internet at home or a mobile connection for some time, and you become so restless that your life कैसे चलेगी. इंटरनेट ब्रेकडाउन हो गया, विंडोज ब्लू स्क्रीन आ गया. सी हाउ द वर्ल्ड रिस्पॉन्डेड टू दैट. द फ्लाइट्स गॉट डिलेड. द बेसिक लाइफ तबाह हो गई थी. नाउ और हमारे नाउ this is one part, how we are becoming the prisoners of this technology. Then I'm not saying it is good or bad. I am only saying that what is happening, and then later on people can put their wisdom around it. दूसरा piece, आज के टाइम पे जब भी मैं देखता हूँ, I have worked with multiple organizations. I go for interviews now. I go for lectures to the colleges. In one of the recently one of the colleges I was there, and the vice chancellor happened to be there, and he was interviewing a professor for HR. So he said, Janesh ji, you are here and you are an expert in human resources, so why don't you join me for an interview? I said, oh, fantastic. So I joined him for the interview, and the professor came with a 10-11 years of experience in a similar field, human resources. Okay. A couple of questions. Then I asked, okay, so what kind of teaching philosophy you believe in? She said, हम तो book से पढ़ाते हैं. I said, okay, which book you follow? Author का नाम ही नहीं मालूम है. अच्छा जी, OB के लिए कौन सी book follow करते हो? Human resource के लिए कौन सी? अच्छा, HR के सब functions क्या क्या होते हैं आप बताइए. What are the good qualities of HR आप बता दीजिए. अच्छा चलिए, basic principles of management कितने होते हैं वो बताइए. उसमें से 2 principles होते हैं, unity of command and unity of direction. ये क्या होते हैं? Silence, dead silence. 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी. 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद, and this is a profile of a professor who is going to teach the human resource people. So this is one example. Now I meet students also. I meet a lot of HR professionals who are growing at this point of time. I don't blame them, but then they have not been exposed to something where they can actually get the fundamental knowledge. Yeah. Now तीसरा piece before I get into answering this. Now what happened? जब हम बच्चे थे, I remember मैं पिताजी के सामने गिड़गिड़ाता था कि पिताजी MBD की कुंजी आई है. उस टाइम पे जलंधर में. So I was doing my 10th, and I said एक MBD की ना रिफ्रेशर आती है. उसमें क्या है वो आपको इजी तरीके से सब बच्चे वो खरीद रहे हैं, मेरे को भी खरीद. Dad said you have NCERT books से पढ़ो. मैं नहीं, कुंजी रहती है, वो कुंजी में ना शॉर्ट फॉर्म में मिल जाता है सब कुछ, तो फटाफट. माय डैड ऑफ कोर्स पहली चीज तो थोड़ा सा फाइनेंशियल, ही डिडंट वांट टू स्पेंड this much money on that. दूसरा, he believed that ये cheating. He said NCERT से स्कूल में पढ़ाते हैं ट्यूशन. What that did is मुझे NCERT चाटनी पड़ी. बट धीरे धीरे क्या हुआ ना, कुंजी became
गुड रिसोर्स, ट्यूशन बिकेम गुड सोर्स। ट्यूशन में क्या होता था, मैं आपको ना शॉर्टकट बताता हूँ। देन उसके बाद नो वर्ड पावर मेड इजी और इस तरह के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के शॉर्टकट्स आ गए। आपने एमबीए की तैयारी करनी है तो मैं आपको शॉर्टकट्स बताता हूँ कि आप क्विकली कैसे क्रैश कैलकुलेट कर कोर्स, सकते हो। क्रैश क्रैश कोर्स और वो कोर्सेज आ गए। क्रैश कोर्सेज आ गए थे। सो एवरीबडी स्टार्टेड टू लुकिंग एट कि फंडामेंटल्स उसके पीछे क्या है, फिलोसफी उस थ्योरी के पीछे क्या है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने कैलकुलेट कैसे करना है वो बता देता हूँ। सो एवरीबडी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट कि यार मुझे एंड में तो क्या करना है, मुझे एक नंबर लिखना है आंसर में, उसके डन। पीछे क्या है वो छोड़ दो। सो वी slowly started moving away from the fundamentals. Where is it coming from? फिलोसफी क्या है आज के टाइम पे? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में यार बेल कर्व फॉलो करना है। बेल कर्व कैसे करना है, आपने एक्सेल शीट में ये डालना है, फटाक से बेल कर्व बन जाएगा। Yes, so HR person is fantastic. Yes sir, I have done performance management system. But today अगर बिजनेस हेड उसको काउंटर करता है कि यार बेल कर्व आई डोंट बिलीव इन, और बेल कर्व आया कहां से, why should we force rank people? तो lot of HR professionals struggle to actually have this qualitative conversation with the business heads ki let me tell you bell curve aaya kahan se hai. It is not something which has been forced to you. If we behave very fairly and honestly, it will automatically take a shape of bell curve. But what is the theory behind it? Where did it originate? What happened and why corporates started following it long back? ये चीजें तो सारी हमने कट कर दी ना, बिकॉज हम शॉर्टकट में चले गए। अब ये सारी तीनों चीजें मिला के विच आई स्पोक अबाउट टुडे, मुझे ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स जो है ना वो यही कर रहा है। वो अनलेस एंड अनटिल, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि यार आदमी के पास ना एक तो सर्वाइवल स्किल होनी चाहिए। वो सर्वाइवल स्किल उस टाइम पे भाई कुछ भी होती थी, आपके पास कोई हुनर हो। उस टाइम पे क्या होता था भाई, कास्ट के हिसाब से सब काम करते थे पुराने जमाने में। जोहरी हो तो आपको सोने की नॉलेज, आप खेती आपको किसानी की नॉलेज है। उस टाइम पे हर आदमी का एक हुनर, कुमार जो है वो मटका बनाना जानता है, तो वो हुनर जो है वो लाइफ स्किल्स कहलाती थी। खान सामा खाना बनाना जानता है। हमारे पिताजी हमको सिखाते थे कि यार फौजियों को ना ये सिखाया जाता है कि अगर आपको सरवाइव करना पड़े विदाउट एनीथिंग, यू शुड बी एबल टू सरवाइव। क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे जंगल में से कहां से बना सकते हो, कुछ नहीं है तो वो सारी लाइफ वो तो स्किल्स आई गेस हमने वो खत्म। आर्मी की रिक्वायरमेंट थी। आर्मी की भी रिक्वायरमेंट थी, बट उस चीज का मैं ये लेके चलता हूँ के टाइम पे अगर चैट जीपीटी नहीं हो, अगर इंटरनेट, अगर गूगल नहीं हो, तो आर यू एबल टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन? क्या आप पीपीटी, क्या आप एक थॉटफुल? दैट्स ट्रू। पूरे कम्प्लीटली डिपेंडेंट, यू आर राइट कि हमें उसको अपना एज अ पार्टनर लेके चल सकते हैं बट नॉट एज अ डिपेंडेंसी। करेक्ट। अब मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, डायरेक्शंस, गूगल मैप तो बहुत बाद में आया था, बट एक बार जिस गली में चले गए और एक बार जिस लोकेशन पे पूछताछ, अगली बार दिमाग में ना कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो रडार सेट लग होता जाता था। था। इवन पता लग नंबर्स, जाता था कि यार यहीं से अगर मुड़ना है। देखो, हाँ। अगर आप देखो नंबर्स लोगों को याद होते थे पहले, या डायरी यस, में एक फोन दो लिख नंबर तो लिए, याद होता है। वो नंबर्स याद होते थे, जिससे हमारी आज के टाइम पे बहुत लोगों के मैथ्स बहुत स्ट्रांग है क्योंकि उनके नंबर्स स्ट्रांग होते थे। आज के टाइम में किसी को नंबर याद नहीं है। डिपेंडेंसी जो है ना, आई थिंक वो खत्म करनी चाहिए। So we should not become slaves to the technology, whatever best things which are happening. Fantastic chat GPT, आपके आइडियाज को आई थिंक बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास बहुत आइडियाज है बट वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते थे सही इम्प्रेसिव वे में ना। लैंग्वेज लिख पाते थे अंग्रेजी, ना ही उसको उतना क्रिएटिवली। अब वो लोगों को इतना अच्छा टूल मिल गया है, बट करेक्ट। दिमाग में तो कुछ है, तो दिमाग में जिसको आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोल दे रहे हो आज को, नहीं दे आप पाओगे, वो तो उससे सिंपल एक लिखेंगे। लेवल ऊपर आ जाएगा। अगर आपने एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग, मैं अगर अपना एग्जांपल, मैं अपनी स्क्रिप्ट्स लिखवाता हूँ क्लॉट से पहले। अपनी रिसर्च, मुझे क्या चाहिए, जो थॉट प्रोसेस है पहले वो लिखा जाएगा कि मेरा पॉडकास्ट तो किसके रिलेटेड है। जब तक मैं ये चीज़ें नहीं बताऊँ तक शायद क्लॉड, एआई कोई भी नहीं बता सकता। डेफिनेटली वो हेल्प करते हैं रिसर्च में कि यार अब ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है, एक्स पे क्या चल रहा है। लाइक एआई है तो एआई को एचआर के साथ जोड़ के अगर मुझे दिखाना तो वो कैसे चलेगा, बिकॉज मैं अपने लिए रिसर्च कर रहा हूँ। यस। तो इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बहुत कंपनीज हमारी यूज करती हैं एआई फॉर स्क्रीनिंग। लाइक आजकल काफी लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया अपना, इजी एटीएस प्रूफ रिज्यूमेस। राइट, मुझे भी लगता है कई बार यार एटीएस प्रूफ कराते हैं, मैंने अपने पैसे के फूके भी उसके अंदर। बट आई स्टिल हैव अ क्वेश्चन
क्या एआई हमारी प्रोडक्टिविटी एट्रीब्यूशंस जो हमने किए हैं, क्या वो उसको स्केल कर सकती है? क्या वो बता सकती है कि इज फिट फॉर द जॉब और नॉट? I don't think so. He can only validate some of your views. He cannot replace. If we are using AI screening as a round of elimination, then I believe that we are kind of doing wrong, and it is injustice to a lot of good talent who will be really a good talent if you evaluate them human to human. But if I use that AI screening as a one more data point for you to take decision, but primarily your human to human conversation and the holistic listening to the candidate. No, HR में हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, होलिस्टिक लिसनिंग, जिसमें शायरी में भी कहा जाता है कि आपको वो सुनना होता है जो कहा नहीं गया। वो चीजें क्या होती हैं, वो फेशियल एक्सप्रेशंस, वो आपके उस समय के आई बॉल मूवमेंट्स, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस देन व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दैट एक्सपीरियंस. Now if somebody is had no parents and had a difficult childhood, maybe AI will not be able to empathize that much on that. AI will simply put कि ठीक है यार, ये job description थी, ये match नहीं कर रहा है. Maybe थोड़े से adjectives, if you are using a word which has got 7 adjectives, AI can still relate कि ये सारे adjectives इसी से मिलते हैं तो इसको ये काम आता होगा. But then if there is a word which is something which is talking about the similar kind of challenge the candidate may carry, but वो English nomenclature और dictionary या उसमें नहीं है, इट्स अ वेरी स्लैंग जार्गन टाइप ऑफ थिंग, तो एआई फेल हो जाएगा वहां पर. बिल्कुल. जैसे साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स, आप किसी भी टूल में को भी एक शपथ दिलवाई जाती है, फौजियों को भी एक शपथ दिलाई जाती है. साइकोमेट्रिक असेसर्स, आप किसी से भी बात करेंगे वो यही बोलेगा कि साइकोमेट्रिक टूल कभी भी एलिमिनेशन के लिए नहीं यूज करना चाहिए. दैट इज अ रॉन्ग यूज ऑफ अ साइकोमेट्रिक टूल. साइकोमेट्रिक टूल एज अ डेटा पॉइंट लेना चाहिए to validate some of your views, some of your thoughts, some of your apprehension. Similarly, screening उसमें वो चीज, बट अगर आपने एआई या कोई भी बंदा जो 70% से नीचे है उसको स्क्रीन शॉट कर दो, वो ठीक है, उसमें नो ब्रेनर है. तो क्योंकि आप बिलीव कर रहे हो कि 70% से जिसके कम मार्क्स आए हैं वो बेवकूफ है, ठीक है भाई, एआई ने बहुत अच्छा काम किया उसमें. बट इफ यू आर फाइंडिंग अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस, पोटेंशियल, ये बंदा इस रोल में फिट हो पाएगा कि नहीं हो, इस बंदे का थॉट प्रोसेस ये लार्जर टीम लीड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लार्जर रोल डील कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, एम्बिग्यूटी में काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजें आई थिंक एट अ सीनियर लेवल AI based assessment should not be a elimination round. It should only be a uh, data point, one more data point for you to validate. That's true. That's true. True. And now next segment which I have is more likely to be researched. What is the biggest salary negotiation mistake professional do in their 30s? क्योंकि अब 30s में जब हर कोई लाखों के अंदर पैकेज में होता है, हर साल लाखों का बढ़ता है, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं इसके अंदर नेगोशिएशन? आई थिंक उस टाइम पे ना सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे ऐसा लगता है कि जब मिडिल करियर में होते हैं ना वो, उस टाइम पे वो ओनली द प्रोग्रेशन और द नेगोशिएशन दे ओनली डू इन टर्म्स ऑफ द कैश. कैश मींस द इन हैंड क्या आएगा, इन हैंड जो आ रही सैलरी. दे एक्चुअली put the role, put the organization to the level in organizational hierarchy, to the role depth, वो सारी चीजें ना वो सेकेंडरी. और वो फिर ना वो लाइफ की फिलोसफीज, वो यार पैसे के पीछे, मन के पीछे भाग में पैसा आएगा, वो सब रियलाइजेशन तब होती है जब आप वो स्टेज पार कर चुके होते हैं. उसमें क्या होता है, यू आर नो, आप बहुत ही प्यार से ना एक ट्रैप में घुसते चले जाते हैं. आपने देखा कि यार यहाँ पर ना मुझे ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, तो आपने वो वाला रोल उठा लिया. तो उस टाइम पे क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, पीपल गेट मैरिड, बच्चे होते हैं, चॉइसेस बढ़ जाती हैं, बड़ी कार लेनी है, घर लेना है, तो ऑफ कोर्स. बट उस टाइम पे क्या होता है, धीरे 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 आप अपने आप को मार्केट में ओवर प्राइस्ड कर लेते हो. क्योंकि अभी आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे ना, आपको CHRO लेवल की पोस्ट आएंगी, तनख्वाह कितनी है, 30 लाख 35 लाख बस.
इतनी सारी लिंक्डइन पे पोस्ट आती हैं जहां पर लिखा है कि सीटीसी रेंज 20 to 30 लाख। अब आप ये बिलीव करिए कि अगर कोई बंदा उस टाइम पे 30 या फिर वो 20 से 30 लाख का सीएचआरओ अगर वो सोच रहा है, तो वो फिर सीएचआरओ का जॉब लेवल किस लेवल? क्रिटिकल में घुस ही नहीं पाएगा, क्रिटिकलिटीज में तो फिर। मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, बट मेरा मानना है कि यार कोई 30 लाख में सीएचआरओ लेवल का थॉट प्रोसेस और वो विजडम और वो डेप्थ ऑफ नॉलेज कैसे ला सकता है? और अगर कोई उतनी डेप्थ ऑफ नॉलेज में है तो 30 लाख पे क्यों होगा? हुआ उसमें फ्रेशर्स जो है वो 20 20 25 लाख एवरेज पे जा। तो वेयर आर द थिंग्स रॉन्ग? वेयर द इंडस्ट्री इज नॉट टॉकिंग टू ईच अदर? दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर बिकॉज पीपल आर नॉट मेकिंग राइट चॉइस। कोई बंदा सोचेगा सीएचआरओ का रोल उसको पकड़ लेता हूँ, जबकि वो 5 साल का एक्सपीरियंस का बंदा है टैलेंट एक्विजिशन, बाकी एचआर फील्ड्स में, बाकी एचआर सब फंक्शंस में एक्सपोजर लिया ही नहीं अर्ली करियर में, बट उसे सीएचआरओ का रोल मिल रहा था, वो सीएचआरओ बन गया। अब उसने अपने आप को मार्केट से आउट कर लिया। अब वो सीएचआरओ के अलावा और किसी रोल पे जाएगा नहीं, जाना भी नहीं चाहिए, कोई उसको देखेगा भी नहीं कि यार ये तो ऑलरेडी एचआर हेड है। लेकिन जब वो एचआर हेड के रोल के लिए प्रेजेंट भी करेगा अपने क्रेडेंशियल्स को, या फिर जब बात होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल नॉट बी एबल टू मेक सेंस बिकॉज उसने वो एक्सपोजर, उस लेवल की विजडम, को बेचारा ट्रैप में फंस गया। द सेम इज अदर वे अराउंड, खाली टैलेंट एक्विजिशन कर रहे हैं बट आपने अपनी तनख्वाह पहुंचा ली 1.5 लाख तक। तो या तो अब आपके पास, आपने आपकी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड, आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे जिसमें ओनली टैलेंट एक्विजिशन एसएमई को भी 1.5 2 करोड़ रुपए, दैट्स योर पाथ। बट अब आपने अपना एचआर हेड या और किसी उसमें मूव करने के लिए आपने अपने आप को बहुत ज्यादा कॉस्टली, यार मैं एचआर हेड लेना चाहता हूँ बट आपकी तो यार तनख्वाह ही बहुत ज्यादा और दूसरा आपका एक्सपोजर। ये जो ट्रैप है ना, ये तब रियलाइज होता है व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू दिस। बट ये लार्जर लेवल का प्रॉब्लम कभी नहीं बनने वाला बिकॉज there are companies who are asking for a 30 lakh CHRO also. There are companies who are ready to pay a talent acquisition guy only doing talent acquisition 1.5 crores also. तो हर तरीके का मार्केट अवेलेबल है, हर तरीके की कंपनी अवेलेबल है। टैलेंट, unless and until the acad college no, decides to teach students about certain basics and certain tricks to carve out and design their career in a way that they रन बैलेंस्ड इन देयर करियर। बैलेंस से मेरा मतलब है कि आपकी नॉलेज और आपकी सीटीसी दोनों एक दूसरे से बात करनी चाहिए कि भाई मार्केट में इस चीज का इतना वर्थ है, उतना ही होना चाहिए, अदरवाइज खरीदार नहीं खरीदेंगे। एक्सपीरियंस लेवल, नो, लॉट ऑफ पीपल, भाई अब थोड़े दिन पहले आई वाज रीडिंग अ स्टडी बाय फोर्ब्स मैगजीन, उसमें वो बता रहे थे कि अ लॉट ऑफ people who are now getting into 40 45 years of age have around 20 25 years of experience. Any professional who has around 20 years of experience from an HR perspective should be somewhere around a salary range of at least 60 lakhs. If you are not at 60 lakhs, then you must immediately make changes in your career so that you get at par with the industry. तो अब अगर आप 20 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप बैठे हुए हैं 15 लाख पे, तो वो रिसर्च ये बता रही है कि देर इज अ सीरियस थिंग फॉर यू टू थिंक अबाउट इट कि That's आपने true. I करियर में guess you're right because I have seen a lot of people having a good experience. बता रहा हूँ, अभी भी वो 18 लाख 15 लाख में बैठे हुए हैं और ये अभी 15 साल के एक्सपीरियंस के। मेरे साथ में कोई एक और है कि 11 लाख का है, ही इज एजीएम, 11 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक एजीएम है। और उसके ऑपोजिट ही एक और बंदा है, वो सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बट वो मैनेजर है, बट वो छोटा भी है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल आई हैव कि वो सेम काम कर रहे हैं, दोनों सेम चीज़ों में है, बट दोनों के पैकेज सेम है, दोनों का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बट वो उससे बड़ा है और वो छोटा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि यार जो बड़ा है उसकी बेवकूफ़ी है कि वो आगे नहीं बढ़ पाया या छोटा ज़्यादा स्मार्ट हो। देखो, सी चीज तो ये है कि भाई आप जो ग्रो नहीं कर पाया, सबसे पहले तो वही गलती मैं मानूंगा कि आप क्यों नहीं ग्रो कर। आपको इंडस्ट्री के साथ, दुनिया के साथ चलना चाहिए अगर आप अपने आप को खुश रखना है। बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंटेड रहे, दैट्स अनदर स्किल। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से कंटेंटेड है, यार पैसे के पीछे नहीं भागना, छोटी गाड़ी छोटा घर बहुत है, मुझे इससे ज्यादा एस्पिरेशन ही नहीं लाइफ की, तो वो खुश, तो ठीक है आप खुश रहिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी परफॉर्मेंस फिलोसफी, पे फिलोसफी बहुत बहुत अलग है। देर आर बहुत कट्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पे फॉर स्किल करती है। भाई मैं एआई मशीन लर्निंग का एनालिटिक्स का बंदा, वो 2 साल का एक्सपीरियंस होगा और वो सीएक्सओ के बराबर की, जिसको कंपनी में तकलीफ है वो छोड़ के जा, बिकॉज मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे फॉर स्किल में, स्किल कितनी वैल्यू है मार्केट में। एक टाइम पे डेटा साइंटिस्ट, मैंने खुद भी डेटा साइंटिस्ट को मैं सीएक्सओ की, जबकि सीएक्सओ से वो 3 गुना कम तनख्वाह, बट जरूरत है उन लोगों की। तो
पे फॉर स्किल उस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसफी तो आप मर जाओगे कंपेयर करते। बट अगर आप उस तरह की फिलोसफी की ऑर्गेनाइजेशन पे फॉर एक्सपीरियंस देता है या पे फॉर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज, तो वहां पर आपको मिलेगा 23 साल के लोग एक्सपीरियंस के बैठे 10 लाख में, बट उनको प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज उनके आसपास जो लोग हैं वो सब ऐसे ही हैं और उनको हम्म मालूम है कि यहाँ पर यार कोई भी मेरे से कम एक्सपीरियंस का बंदा मेरे से ऊपर वाली तनख्वाह पे आ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस के। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन जो परफॉर्मेंस फिलोसफी या पे फिलोसफी बोलते पे फॉर परफॉर्मेंस, जो सबसे ज्यादा चलती है कि यार आप परफॉर्म करो, आपकी तनख्वाह ज्यादा हो सकती है कम हो सकती है, बट देन देर आर फंडामेंटल्स ऑफ द कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर ऑल्सो। यार एक मैनेजर की तनख्वाह उसके जूनियर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जनरली, बट देन बहुत सारी हम्म क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मैनेजर की कम होती है बिकॉज ही इज अ जनरल मैनेजमेंट पर्सन, बट उसके नीचे एक एसएमई बिठा रखा है हमने जो कि उस हार्डकोर स्किल के लिए काम कर रहा है, उस स्किल का मैं पैसा अलग से दे दूंगा उसको, बट फ्रॉम अ रोल परस्पेक्टिव उसकी सीटीसी इतनी है, उसको एक स्पेशल अलाउंस में ऐड कर रहा हूँ जिसकी वजह ट्रू से उसकी तनख्वाह मैनेजर से ज्यादा हो सकती है। बट वो बंदा भाई नासा का बहुत ही स्ट्रांग फॉर्मूला जानता है और उसके लिए मैंने इसको रखा हुआ है। तो वो सारे बड़े ना डिफाइंड, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। बट स्ट्रक्चर। अगर आप, लेकिन अगर आप एक बंदे हो जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे सरवाइव कर रहे हो और आपने अपना नॉलेज, अपना एजुकेशन स्किल सेट समय के साथ नहीं बढ़ाया और आज 15 साल के बाद आप बोल रहे हो कि यार ये कल का मैनेजमेंट ट्रेनी है, ये मेरे से ज्यादा तनख्वाह पे आ रहा है, तो फिर आपका ट्रू। आजकल तो 6 क्लास में आएगा पाइथन या कोडिंग स्टार्ट करा देते हैं, सो दैट यू गेट द स्किल। चाहे आप इंजीनियरिंग में जाओ या ना जाओ, बट यू नो दी बेसिक्स, क्योंकि एआई आएगा, एआई में पाइथन चाहिए। आई हैड डेवलप दैट, दो आई एम नॉट फ्रॉम दिस टेक्निकल बैकग्राउंड, बट आई एम लर्निंग द बिजनेस एनालिटिक्स एंड यूजिंग। मेरे को पाइथन नहीं आती है, मैं अभी भी ना क्लॉड से पढ़ पढ़ लिस्ट। आई नो द स्किल, दो आई गो इन अबव। तो मुझे पता होना चाहिए कि यार मेरे सबऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं, कहीं बेवकूफ़ मुझे। एब्सोल्युटली आप अगर आपको मैनेजर भी बन गए तो आप उसको हम्म, ना ओवरसी कैसे करोगे, आप उसको गाइड बिल्कुल कैसे बिल्कुल। करोगे, रिव्यू कैसे करोगे आप, क्योंकि आपको तो उसकी नॉलेज ही नहीं मालूम है। अब मेरे को भी, अब मैं बहुत डरा हुआ हूँ बिकॉज मेरे को अभी एआई एजेंट बनाना सीखना है। तो मैं अभी, मेरे को तो कोडिंग वोडिंग कुछ आती नहीं है, बट आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे और उस सब पे देखो बिना कोडिंग के लिए बिना कोडिंग की नॉलेज के एआई बनाइए और बिल्कुल वो। तो मैं अभी ऑनेस्टली दीज डेज आई एम ओनली वर्किंग ऑन दैट कि यार कौन सी वेबसाइट पे जाके इमरजेंट है, कोई ये है जो कि हार्डकोर कोडिंग है। कोडिंग है, कोडर्स को वो समझ में आता है। तो मैंने 2-3 जगह ना वेबसाइट तो बना दी, मैंने अच्छा। ऐप भी बना दी, वो तो कुछ नहीं था, मैंने बस प्रॉम्प्ट दिया, पर वो चले ना। अब मैं सोचूं कि यार ये चल क्यों नहीं रही है और ये लाइव क्यों नहीं हो रही है। देन आई स्पोक टू वन ऑफ माय आईटी पर्सन, कहता है सर उसको तो आप मेन ये काम सारे ही क्लिक बेट हैं, मैंने ट्राई कर लिया। ये सारे क्लिक बेट हैं, एंड मैंने चलो थोड़ा कोर्स करके थोड़ा जानने के बाद पता लग गया हाँ एजेंट्स बन सकते हैं। बहुत लोग रील्स भेजते हैं कि यार देखो हमने एन एजेंट हमने बनाया हमारे लिए, वो जॉब अप्लाई कर रहा है और मैंने दस इतने या पैसे दस कमा लिए। साथ ले लिए। हाँ, 3 लाख रुपए। व्हेन यू ट्राई इट ना, वो नहीं मिलेगा। एक्चुअली सिर्फ क्लिक बेट से उनको बस यूज कर रहा है। आई गेस आपने नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज, इज जॉब हॉपिंग इन इंडिया इज फाइनली नॉर्मलाइज्ड। उनको हाई लेवल पे जब जाते हैं तो वहां पे वो उनको किल हो करेक्ट, यू आर 200% राइट ऑन दिस। एट अ जूनियर लेवल नाउ, जूनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट लेवल, जहां पर मैं ये बोलूं कि आपके मिलेनियल्स और जेंजीज हैं अभी, मिलेनियल्स भी मैं बोलूंगा, जो अर्ली मिलेनियल्स, अर्ली मतलब जो अभी यंग मिलेनियल्स में, 90s वाले। हाँ, आप जब तक है जॉब होपिंग अभी काफी हद तक एक्सेप्टेबल, एंड पीपल आर आल्सो बिकमिंग वेरी वेरी ओपन इन टॉकिंग अबाउट कि मैंने क्यों हॉप किया, मुझे पैसा मिल रहा था, मुझे काम अच्छा नहीं था। तो जॉब होपिंग एक चीज हो गई, आपके गैप इन दी करियर हो गया, ये सारी चीजें काफी एक्सेप्टेबल हो गई हैं आज के टाइम पे। इवन अगर आप एज अ रिक्रूटर बोलते हो यार तूने 2 महीने का गैप क्यों लिया, और वो बंदा बोलता है कि मैं हिमालय में चला गया था घूमने के लिए, एंड यू टेक इट एज अ नेगेटिव थिंग, तो आपको बोलेंगे कि यार ये पुराने ख्यालात का, यार ये व्हाट इज मीन, यार वर्क लाइफ ट्रू। बैलेंस भी कोई चीज होती है। तो हमारी आज की जनरेशन, और हम नहीं बनाया, मेरे जैसे फादर्स हैं, आपके जैसे पेरेंट, बाकी और बहुत सारे हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को इतना नो वोकल बना दिया है और उनको ऐसा बता दिया कि ये तो आपका राइट है, मम्मा आपको चाटा कैसे मार सकती है, आपको कैसे ऐसे बात नहीं कर, उनको ये लगता है कि ये तो क्राइम है, के बाद मैं क्यों काम करूंगा। उनको दे आर नॉट रिटेलिएटिंग, उनका माइंडसेट जो है ना वो यूनियन वाला नहीं है,
उनके लिए जो फंडामेंटल्स है ना वो यही बन गए। हमारे लिए तो भाई, हमारे तो बॉस हमको बहुत डांटता भी था, गाली भी दे देता था, 8-8 9 9 बजे तक छुट्टी भी कैंसिल होती थी, बट हम लोग उसको उल्टा नहीं मान, यार करनी है तो भाई ये तो करना ही पड़ेगा। वीडियो डाल देते, माई मैनेजर केम एट 6 PM एंड ही सेड आई नीड दिस डेटा बाय अनदर 1 hour। नो, हाउ क्रूअल इज दिस। और भाई साहब उसके ऊपर आप ये देखो कितने व्यूज आ बैशिंग। जाते हैं। और तो आज की जो यंग जनरेशन है, दे आर much more vocal about what they are feeling, much more risk takers, and they are much more work life balancers, जिनको मैं बोलूँ ना, अपनी लाइफ वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। वो जो सोशल बर्डन हम लोग कैरी करते थे ना, टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, मे बी जस्ट बिकॉज मेरी जॉब नहीं चली जाए, या फिर टू मेंटेन a superficial harmonious relationship in a organization with peers, with councils, with CXOs, कि ये ना हारमोनियस रिलेशनशिप जो हमको दिख रहा है ना, ये इज नॉट फेक हारमोनियस रिलेशनशिप है। आज के टाइम पे वो फेकनेस आज की जनरेशन नहीं करती है। बट दैट्स ट्रू। अभी भी आज के टाइम पे जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, बहुत टॉप लेवल पे जो टॉप मैनेजमेंट है, वो एक्चुअली उस दौर से गुजरे हुए हैं जहां पर जॉब हॉपिंग वाज अ क्राइम, जहां पर स्टेबिलिटी वाज द ओनली थिंग दे यूज्ड टू लुक एट। दे बिलीव्ड इन द लॉयल्टी मोर देन कि आप यार, नो, बूमरैंग केसेस बहुत डिफिकल्ट दिल पे ले लेते थे कि तू छोड़ के क्यों गया था हमको, अब गया था ना, अब वापस नहीं लूंगा। आज के टाइम पे सोसाइटी ऐसी हो गई है कि द रिलेशनशिप्स एट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज टू अ लेवल कि यार आई विल नॉट माइंड इफ यू कम बैक। भाई मेरा कौन सा रिश्तेदार है भाई, नो, यू वांट टू एक्सेप्टेबिलिटी कम, आ चुकी है उस चीज की। एक्सेप्टेबिलिटी है उस चीज की, ठीक है यार, यू लेफ्ट ऑन अ गुड नोट, टुडे यू ब्रिंग अ डिफरेंट स्किल सेट, आई हैव माय इंटरनल पैरामीटर्स ऑफ कॉम्प एंड ऑल, अगर आप उसमें फिट हो रहे हो तो यार बिल्कुल आ जाओ। इफ यू लेफ्ट ऑन अ गुड नोट, वी एक्सेप्ट दैट। बूमरैंग, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बूमरैंग को वेलकम करती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये लिखती हैं कि हमें जो है ना वो मल्टीपल एक्सपोजर वाला बंदा चाहिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं यार ये पूरे जिंदगी 16 साल 17 साल एक ही कंपनी में रहा है, इसको शॉक लग जाएगा, क्योंकि वो कल्चरल शॉक लगेगा, ही विल नॉट फिट इनटू आवर कल्चर। हमारा कल्चर 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आज के टाइम पे बड़ा ट्रेंडी हो गया, तो वहां करेक्ट। पर वो लोग मारे जाते हैं। बट बहुत सारी लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यही बोलेंगे यार ये बंदा पकड़ के लाओ, ये 16 साल से एक ही कंपनी में है, मुझे ये स्टेबिलिटी चाहिए। अपनी अपनी जगह, बट मेरा मानना ये है कि और 5 साल 10 साल के बाद जो अर्ली मिलेनियल्स 80s वाले 85 वाले, ये जब थोड़ा सा टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे, इस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी और ज्यादा हो तो आई गेस जाएगी, अप डाउन पूरा चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। मैंने अभी मैं भाई किसी के साथ डिस्कस, तब उसने यही चीज बोली कि जो हम अर्ली मिलेनियल्स अपना करियर स्टार्ट किया था, अब उस टाइम पे आई गेस 2008 के उस टाइम पे क्रैश हो रही थी मार्केट, जॉब्स होना ही बहुत बड़ी बात थी। 2015 तक वो चीज़ अब नॉर्मलाइज हुई, एंड जब जेंजीज ने एंट्री करी 2020 में, उनको वो चीज़ें ऑलरेडी अपने हाथ में मिला, उनको पता लगा यार जॉब सिर्फ करना नहीं है, अपनी लाइफ भी है, क्योंकि उनके लिए वो नेसेसिटी नहीं। फिर कोविड आ गया, कोविड ने और सिखा दिया कि यार लाइफ सिर्फ एक ही है, कुछ भी हो सकता है, सो गो एंड एंजॉय योर लाइफ। तो आई गेस वो नेसेसिटी। दूसरा, एंजॉय योर लाइफ, उसने शायद जेंजिस को थोड़ा और वोकल बना। थर्ड ऑलरेडी बता दिया कि पेरेंट्स ने भी उनको थोड़ा सा वोकलाइज कर दिया है कि यार तुम्हें नहीं लेना अपने उस पे, बाउंड्री सेट होनी है तो होनी है। तो दैट्स व्हाई दीज 3 पॉइंट्स आई गेस जेंजिस ने बहुत सही स्टैंड ले रखा है इस चीज एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू, नो, जमाने के साथ चलना पड़ेगा। लार्जर इंडस्ट्री, लार्जर कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज गोना बी ऑफ जेंजीज, तो भाई अब पे। तो कुछ उनके चीजें हिसाब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उनकी। से करनी एंड आई गेस पड़ेगी। मिलेनियल ओपनली सपोर्ट नहीं करते, बट सपोर्ट पूरे करते हैं कि यार हमने प्रेशर झेल लिया है या हमने ले लिया, एटलीस्ट अब हमें भी ना मिले, अब वो हम बेचारे कुछ नहीं करना माइनॉरिटी में आ गए चाहते। ना, वो क्या करें अब वो, अब अगर वो बोलें कि नहीं जी आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते और ये तो पॉसिबल ही नहीं, स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज वेरी मच पॉसिबल, वो मैनेजर बेचारा अभी थोड़ा सा स्टेप बैक कर देता है, वो लोअर करेक्ट। उस पे। अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ऐसे हैं जहां पर भाई फिजिकली तूने असेंबली लाइन पे असेंबली करनी है, तू वर्क फ्रॉम होम कैसे करेगा। बट वहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे आपके R&D वाले हैं, वो बोलते हैं कि हम्म। सर मैंने ना लैपटॉप पे डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज रन करने होते हैं, मशीन से मेरा कनेक्टेड है, तो आई कैन डू दैट।
So organizations are also becoming little more ठीक दैट्स है अ जहाँ नेचर जॉब नेचर है मतलब। जॉब नेचर है correct. तो अगर मैं इसमें इसी में बात कर हम बात कर रहे हैं कि जॉब हॉपिंग हो गई, फिर लोगों ने टैलेंट अपना उसे यूटिलाइज कर लिया। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टैलेंट होता है, बट वो लोग प्रमोट नहीं होते। कई बार उनकी विजिबिलिटी नहीं बोल पाते या नहीं दिखा पाते, परफॉर्मेंस अच्छी होती है बट फिर भी नहीं होते, या फिर उनको पॉलिटिक्स मार जाती है। व्हाट आर द रियल रीजन फॉर अ गुड परफॉर्मर टू डोंट गेट द प्रमोशन, हाउ ही कैन वर्क ऑन इट? देखो रियल रीजन तो मैं बोलूँगा इज द सोशल सिस्टम वी हैव, वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ द सोसाइटी इन विच वी लिव। अब उसमें आज के टाइम पे बड़े नो these days one of the judge of Supreme Court is talking very boldly about the Indian political situation. ट्रू। तो देखो रियलिटी तो लाइफ की ये है कि लाइफ इज नॉट फेयर टू एनी से देखो वी आर ऑल एनिमल्स, वी आर ऑल्सो अ स्पीशीज, ह्यूमन बीइंग्स इज अ ट्रू। स्पीशीज। और हम लोगों ने स्टार्टिंग करी थी टू वन तीन चीजों के लिए सरवाइव करते थे, खाना, रिप्रोडक्शन और सेफ्टी। भाई आपके तीन ही वो चीज का, आज का मुझे खाना मिल गया, अब मुझे मेरे परिवार को सेफ रखना है बिकॉज देर आर अदर एनिमल्स इन द जंगल हु कैन कम एंड किल यू। और वो सबसे बड़ा चैलेंज होता था बिकॉज देर वॉज नो सेकेंड चांस। और इसीलिए जो हमारा बॉडी का रिफ्लेक्स सिस्टम होता है, जो एंजाइटी होती है हमारी आज के टाइम पे, बिकॉज वो हमारी बॉडी उस टाइम पे जो कभी कभी आपका वो जो होता था ना कि स्टे और रन जो बोलते थे, क्या उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल टर्म्स में, कि उस टाइम पे जब डेंजर आता था तो उस टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो ऐसे रिएक्ट वैसे करती रिएक्ट थी। करती थी। तो वो उस टाइम पे फिर वो सारे हार्मोन्स रिलीज होते थे और आप वो रश होता था आपको। बट आज के टाइम पे क्या है कि वही सिचुएशंस हम अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं कि अब तो भाई मैनेजर मेरे को ये करेगा, मेरा प्रमोशन चला जाएगा। humans are still the same, they see other human beings as their competitors। ह्यूमैनिटी के बारे में सोचो भाई, उसके बारे में भी लोग कितना कुछ बोलते हैं कि ये गुरुजी बात तो कर रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन खुद इनके पास लुई वितों के बैग लेके घूम रहे हैं, खुद इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो भाई देखो, चाहिए तो सबको। और शाहरुख चाहिए खान का एक सबको। बड़ा अच्छा डायलॉग मुझे याद आता है। शाहरुख खान बोलता है, जो आज के टाइम पे ये बोलते हैं ना कि देखो पैसे के पीछे मत भागो, पैसा कुछ नहीं है, ये लोग वही हैं जिनके पास बहुत पैसा आ चुका है। ये चीज वो तब नहीं बोल सकते थे जब उनके पास पैसा नहीं था। तीसरी चीज मैं बताऊं, एक डॉक्टर विकास दिव्याकृति हैं, जो दृष्टि कोचिंग सेंटर चलाते हैं, बड़े अच्छे स्पीकर हैं, उनके पॉडकास्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी। कहते कि तीन आदमियों की मौत हुई, और जब तीन आदमियों को गोली लगी तो एक आदमी के मुंह से निकला अल्लाह और मे बी वॉट एवर, भगवान का नाम, एंड दिस इज द ओनली स्टोरी ही सेड। वो कहता है कि भाई जब आदमी की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, पेट भरा होता है, तभी आदमी फिलोसफी करता है। जब आदमी का पेट खाली होता है ना, उसको सिर्फ खाना चाहिए, उस टाइम पे वो फिलोसफी नहीं करता। उस टाइम पे नहीं बोलता कि हमारा समाज ये होना चाहिए, ये गवर्नमेंट आनी चाहिए, या फिर हमें ये धर्म का खाली पेट फिलोसफी। नहीं तो द होती। सेम इन्वायरमेंट इज इन कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो। या you would be very lucky to have a manager, to have a leader who is, जो निस्वार्थ, जो गीता में पढ़ाते हैं ना कि आप निस्वार्थ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भाई वो भी वहां पे नौकरी कर रहा है, उसके भी बच्चों का फीस जानी है, उसका भी होम लोन का किस्त जानी है, तो वो भी काम करेगा। एंड ही विल ऑल्सो हैव सर्टेन डिलीवरीज टू हिज अपर मैनेजमेंट। सो he will have to take into consideration a lot of factors. He will also have his own securities, insecurities. Somebody is not behaving properly, he is a human being, he would want to take revenge. Now that behavior could be good or could be bad or could be bold, but वो मैनेजर है तो he is able to decide कि ये फौजी ने मेरे को जवाब दिया, अब इसने जवाब सही दिया गलत दिया मुझे इससे मतलब नहीं है, इसने मेरे सामने आवाज ऊंची कैसे। रियलिटी है। एंड हेंस चीजें जब होती है, जो नीचे वाले इस तरह के बॉस है, तो वो बॉस फिर मैगजीन्स में आ जाते हैं कि ये बड़ा बोल्ड लीडर, इसने ऐसा बोल दिया। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो वो अगर इतना बोल्ड बोल रहे हैं ओपनली कि सारे करप्ट हैं, तो उनका तो अखबार बन गया। बाकी बाकी 99.9% तो नहीं बोल रहे कि करप्शन है। और आप और मैं सब जानते हैं कि अगर मैंने सड़क पे निकला और मैं सड़क पे साधु बन के निकला यार, और एक थप्पड़ और मारो मुझे तो मैं घर तक जिंदा। नाउ द रियलिटी इज दैट वी कैन नॉट now close our eyes to that reality, but we need to keep ourselves safe till the point it is possible, our inner conscience safe,
till the point it is possible. And the only solution to this is to leave the performance management system to a system in real sense. वहां पर मैं बोलूंगा कि वहां पर आप एआई यूज करके एटलीस्ट द फर्स्ट कम आउटकम जो है वो एक एब्सोल्युटली फेयर लेके आइए. वो भी आज के टाइम पे 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रगलिंग फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में वो ह्यूमन बायस निकालने की. द रेटिंग सिस्टम शुड बी सो दैट चाहे वो आज कुंवर उस बंदे को इवेलुएट करे, चाहे वो जाने, द स्कोरिंग शुड कम सेम. साइकोमेट्रिक टेस्ट ने भी वही चीज करने की शुरू. ह्यूमन बायस को मैं कैसे कितना कम कर सकता हूं उसमें. वहां पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में द मोर क्लियरर यू आर विद योर KRAs गाइडलाइन, योर SOPs, with your other standing orders, ये चीज ऐसे ही होगी. एंड नो दीज आर द गाइडलाइंस विच आर नॉन नेगोशिएबल गाइडलाइंस. तो फिर आप बोल सकते हो कि यार यहाँ का सिस्टम फेयर है. और वो सिस्टम फेयर तभी नजर आता है बिकॉज हो सकता है यार मेरे लिए वो आदमी कातिल है और कुंवर जी के लिए वो आदमी कातिल नहीं है, बिकॉज वकील तो दोनों की तरफ के बैठे हुए हैं, दो इधर के बैठे हुए हैं. भगवान तो जमीन पे. तो अब मैं इसको थोड़ा से अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, अब उसको हम थोड़ा सा क्रिप्स रखेंगे. मतलब एक दो तीन लाइनों. यू हैव वर्कड विद दी क्रॉस अक्रॉस फिनटेक स्टार्टअप्स कुछ एंड कुछ ग्लोबल एफएनसीज. एक कंपनी है 100 करोड़ की और एक कंपनी है 10,000 करोड़ की. बट जो 100 करोड़ वाली है वो उसने काफ़ी रॉन्ग टैलेंट 1000 करोड़ वाले ने ऑलरेडी वो सॉल्व कर लिया. ऐसी क्या चीज़ें हैं जो 1000 करोड़ वाली पहले सॉल्व कर चुकी है, और आप कैसे 100 करोड़ वालों को गाइड कर सकते हो कि कैसे उनको टैलेंट हायर करने चाहिए या किस तरीके से टैलेंट होना चाहिए उनके पास टू रीच एट दैट प्लेस. See, 1,000 crore organization have traveled that journey long back, and at that point of time, they have seen what were the challenges, and they have realized that maybe we gave importance to few factors which I should not have given at that point of time. Did not hire at that point of time for a long-term perspective because I was at a hyper growth stage when I was at 100 crores. My business motive was a hyper growth stage. I wanted talent to be hired for hyper growth stage. Usme I did not care about what CTC he is coming at. I did not care about whether he is stable or not. I did not care about whether he is having the right qualification or not. Skill set मैंने उठाया था. But today I have become a larger organization, and when the organization become larger, I need to keep it as an organization. Organization का मतलब लोगों की भीड़ जो organized तरीके से काम करती है. So now I cannot take those risks of having random choices, random people getting hired or at a random salary. छोटी size में मैं manage कर सकता था, बड़े size में I will have to keep certain structure in place. So at that point of time 100 करोड़ पे structures मत देखिए, 100 करोड़ पे आप hyper growth देखिए, 1000 करोड़ पे आप structure देखिए, organization level. I guess that's a good thing which startups should know, because मैं इसको relate कर पा रहा हूँ अपने पुराने startup के साथ जहाँ वो लोग करते थे. Second thing is boards talk about success planning but rarely execute it well. Why does leadership fail? Succession उनका fail होता है. जो हमारी बड़ी वो होती है ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग तो बड़ी होती है बट सक्सेस. बिकॉज आज के टाइम पे भी वो चीज समझ में नहीं आ रही है लोगों को कि आज भी टुडे आल्सो वी हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाई डू वी नीड HR, क्योंकि वी बिलीव दैट नो अ बिजनेस हेड कैन डू ऑल द थिंग्स. नाउ देयर आर करियर कोच, देयर आर कंसल्टेंट्स हु एक्चुअली डू योर हाई पोटेंशियल जर्नी डिजाइन. There are high potentials who actually, there are consultants who train your high potentials. There are consultants who actually do onboarding for CXOs. So why the CEO cannot do? Why the business heads cannot do that? We are giving wrong responsibility to a wrong talent. See, a CXO or a COO who has been a salesperson throughout his life, he is good at sales, but don't try him to design a career. Now, not everybody is a storyteller, not everybody is a guru, not everybody is a singer, not everybody कुछ हर काम हर चीज नहीं कर सकते. Human resources people are trained to do that. No, they understand how to write a career, how to look at the possibilities of these careers, whether this person is going to be successful in the career or not. Business heads have seen the performance of that person. Business heads have a biased view, but HR will see him as a futuristic potential. So let the expert do the job. ये आप वही बात कर रहे हो कि एक MBBS डॉक्टर या फिर एक जो जनरल फिजिशियन होता है उसी से आप हार्ट सर्जरी भी करा लो,
उसी से ही आप न्यूरोलॉजी सर्जरी भी करवा लो, तो वो भाई फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। जनरल ज्यादा है। फिजिशियन इज अ जनरल फिजिशियन, बट आप अगर आप हार्ट स्पेशलिस्ट से न्यूरो सर्जरी कराओगे तो भी फेल हो जाएगा। आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से न्यूरोलॉजी रिलेटेड न्यूरो साइंस रिलेटेड सर्जरी कराओगे, फेल कराएगा। प्लीज ट्रीट द प्रोफेशनल roles also in a similar way. No, just because you are a CEO doesn't make you master of everything. You are jack of all, master of one. बट आप नो मास्टर ऑफ ऑल नहीं हो, ये रियलिटी उनको समझ में आनी चाहिए, एंड फॉर दैट ही नीड स्पेशलिस्ट अंडर देम। दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द सक्सेशन प्लानिंग फेल। Again, and adding to this as well, कि how do you convince a cost obsessed CFO that investing in people strategy has measurable ROI? So now, while I always believed in this philosophy, of course, always had these kind of fights with the CFO. But McKinsey ने ना एक बहुत अच्छा आर्टिकल, जब तक फाइनेंस पीपल कॉस्ट को इन्वेस्टमेंट में, ही विल कंटिन्यू टू स्क्रू the HR's life. Yeah, these are the real statements which are mentioned in Oh, the book. really? Yeah, I will share that article with you. मुझे बहुत अच्छा Yeah. लगा वो। सी दी रियलिटी इज दैट आप कोई भी केपेक्स, भाई आपने वो मशीनरी, क्योंकि वो मशीनरी एक स्किल सेट लेके आ रही है, और आपने उस मशीनरी को अमोर्टाइज कर दिया 5 साल 10 साल के लिए, कि इस मशीनरी का डिमिनिशिंग मैं वो लेके चलूंगा, तो इस साल में 10% इसकी कॉस्ट में मेरे ओपेक्स में। वाई नॉट द कॉस्ट ऑफ अ CXO? वाई नॉट द कॉस्ट ऑफ अ पर्सन हु आई एम हायरिंग? भाई वो भी तो एक CXO आया है, और फिलोसफी ऑफ जितने भी ये स्टडीज दे, एक बंदे को 100% पे डिलीवर करने के लिए ऑफिस कैपेबिलिटी, वो ऑर्गेनाइजेशन में जब 1.5वें साल में आसपास होता है, वो एट द बेस्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस, क्योंकि वो कल्चर इंटरनल वे अराउंड समझ चुका होता है। 10x तो हो आप, चुके होते हैं। हाँ, तो वो आप CXO जो है, आप उसको जो भी आप उसको तनख्वाह दे रहे हो, 5 साल की तनख्वाह आप उसको अमोर्टाइज करिए, और उस 5 साल के आप 1 साल में जो आप उसको तनख्वाह दे रहे हो, भाई पहले ही साल वो थोड़ी अपनी पूरी 100% तनख्वाह का डिलीवरी दे देगा। उस नहीं तनख्वाह दे का अगर सकते। 20% भी उसने दे दिया तो उसने बहुत अच्छा किया, बिकॉज ही इज सेटलिंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज पर फाइनेंस इज नॉट द रियल आउटकम। He is building relationship. He is building systems who may be giving you result after 1 year. He is building, understanding the culture of the organization. And then we should talk about. So the moment they will start, any 2 साल में आएगा मेरा, क्योंकि 2 साल हम्म। बाद ये बच्चे जो है ये नई पोजीशन पे जाएंगे, तो उसको 2 साल में अमोर्टाइज करो। तो दे शुड ऑल्सो ट्रीट ह्यूमन एसेट as an investment, and then amortize it like any other capex in the organization. I am sure देखो चेंज कुछ नहीं होने वाला, the way you look at the numbers will change. तो वो जो रेवेन्यू रेशियो और वो सब वो चेंज हो जाएंगे, वो एक्सेप्टेबल, ताकि मालिक की जेब से, द वे वी लुक एट दैट। तो ऐसे ही करते हैं, मैं उनको बोलूंगा जी मेरा 5 करोड़ का 50 करोड़ का CTC बिल है, उसको डिवाइड बाय 12 करके वो हर महीने, और उसके बाद किसी महीने मेरा ज्यादा खर्चा होता है, किसी मेरा महीने मेरा खर्च, जिस महीने ज्यादा हो उस दिन वो हाईलाइट कर देते हैं कि यू हैव ग्रोन गॉन बियॉन्ड द बजट। अरे बजट इतना मैथमेटिकल, मैंने 5 बंदे हायर करने थे, वो 25 के 30 लाख पे हायर करने, मुझे तो 15 लाख का ओवरशूट हो गया, अगले महीने कम हो जाए मुझे। नो, मेरी जो आर्ग्यूमेंट्स मोस्टली ये रहती हैं कि लेट अस बी वेरी वेरी रीजनेबल to human resources, because a lot of ट्रू। things are not like black and white, and lot of things are not like machines, lot of things are not price tag fixed price नहीं होता है यार। जब तक बंदा ऑन रोल नहीं होता है, आई कैन नॉट एक्चुअली टेल यू व्हाट इज गोना बी द CTC। HR डिपार्टमेंट पे मैं फिक्स्ड प्राइस शॉप नहीं लिख सकता हूं, मैं HR डिपार्टमेंट पे नो रिटर्न्स नहीं लिख सकता हूं, एट्रिशन होगा, एक बार बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, मैं HR डिपार्टमेंट में नहीं लिख सकता हूं, करेक्ट। क्योंकि प्राइम भी होंगे, एट्रिशन भी होगा। तो कैन आई वर्क लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन और अ शॉप जहां पर फिक्स्ड प्राइस शॉप है, बिका हुआ माल वापस भी नहीं होगा, और एक बार जो माल बिक गया वो आपको रखना पड़ेगा? नहीं होता है ऐसा यार रियल लाइफ में। पीपल गो एट राइट, पीपल गेट एट मच हायर कॉस्ट, पीपल आस्क फॉर मोर, सारी चीजें फाइनेंस को आई थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। बिकॉज में क्योंकि इंडस्ट्री का जो नॉर्म्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, स्किल्स चेंज होते हैं। जो मैंने देखा है, ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं कि अगर एक्स नंबर अमाउंट पे अगर बंदा गया है, तो कई बार तो कहते हैं कि इससे कम में बंदा आ जाएगा, इससे कम में लेके, क्योंकि चला गया 8 लाख पे 6 लाख पे।
इसमें बस वही हो जाता है, कन्वर्सेशंस एक्चुअली सब्जेक्टिव हो जाती हैं और क्वालिटेटिव हो जाती है। इसको क्वांटिटेटिव बना डेटा होता ही नहीं है कि उसको मैं प्रेजेंट कर सकूं। दूसरा क्या होता है, इस तरह की कन्वर्सेशन डेटा की एक्सेप्टेंस भी ऐसा हो जाता है कि यार ये तो ना थोड़े डेविएशन एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट इन रियलिटी 6 लाख पे भी मिल जाए। उस कंपनी में आप जाके देखो, वहां पर 6-6 लाख में, बट जब हम उनको इंटरव्यू करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं। तो वो टू एंड फ्रो, वो वॉर तो चलता हमेशा ही चलता रहेगा। है, वो तो नेवर एंडिंग है। अब जो आप एज अ कंसल्टेंट यहाँ यू वर्क विद अ लॉट ऑफ टीम्स, एक चीज पूछना पर्सनल स्टोरी पे, ऐसा कभी टाइम आया कभी किसी सीईओ को आपने बताया हो कि यार यू आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, क्या बात करो फेस पे? यस, ऑन द फेस, आई लॉस्ट माय जॉब। सो ऐसा कई बार हुआ है। इट्स नॉट ओनली अबाउट सीईओज, इट्स आल्सो अबाउट माय, आई हैव बीन वेरी वोकल इन टर्म्स ऑफ sharing my views, sharing my feelings. There have been a lot of managers who appreciated that fact. Of course, these all conversations have been very, very respectful. चरो में होता है वैसा कुछ किया, but then was रख लेता था मैं कि ठीक है यार, इट इज ओके मे बी, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल की भी कमी थी ऑन माई नॉलेज, ऑन माई डेप्थ ऑफ नॉलेज, ऑन माई विजडम। बट अब क्या है कि भाई खुद भी 47 साल के हो गए हैं, लाइफ का भी एक्सपीरियंस हो गया है, और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीपल इंडस्ट्रीज, मल्टीपल सिनारियोज देख लिए, भगवान की दया से काफी एक्सपोजर मिल गया है। तो अब जो पॉइंट मैं बोलता हूँ तो उसमें मुझे मालूम है कि यार मैंने ना फिलोसफी से लेकर नंबर से, और मेरे पास आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाय पे आपके सामने इतने पैशनेटली बात करते हैं, बट बोर्ड रूम में सर जिल्ले इलाही की जय हो, जिल्ले इलाही की। ट्रू। तो वो एक एक शेर है कि आपको दरबार की आदत है, दरबारी हो। तो वो जो यश यश मैन था ना, यस मैन, एंड उसकी वजह से अप्स एंड डाउन्स रहे हैं मेरे करियर में। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आई हैड टू इवेंचुअली लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज सिनारियो वैसे हो गए थे यार, आई कैन नॉट वर्क विद माय मैनेजर, सो इट इज बेटर दैट आई मूव ऑन। बिकॉज कहीं ना कहीं तो देखो, अब मैं बोलूं कि मेरे को इस पृथ्वी पे ही रहना नहीं है, तो भाई या तो मार्स में अपना जुगाड़ कर ले, नहीं तो पृथ्वी पे ही रहना पड़ेगा। तो वैसा ही होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि यार व्हेन यू हैव टू सर्वाइव इन द रिवर, यू कैन नॉट मगरमच्छ से तक दोस्ती आप। करनी पड़ेगी। तो no, there were a couple of things which actually touched my personal value system, हम्म। and that's where I decided that nahi yaar. So I was very vocal, saying that, see, uh, your perspective is this, my perspective is this. Now, if we want to keep our eyes closed, it is up to us, but then I cannot do this. I will today not put my credibility on stake, because in market when I go, there is my own team. There was a decision to be taken, and my own team was looking up to me. That decision was something related to something unfair happening to an employee, and I know that it is unfair. Then the moment I thought कि मेरे से ऊपर अथॉरिटी, दे हैव टू डिसाइड, बट मेरे से ऊपर अथॉरिटी तो मेरी टीम भी मेरी तरफ ऐसे देख रही थी कि सर आप भी, मतलब हाउ कुड यू अग्री टू दिस, नो ये आपकी टीम के साथ होगा तो आप एग्री कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं ना इंटरनली अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि यार कल को माई डॉटर विल ऑल्सो बी इन एन इंडस्ट्री, माई, ये जो मेरे जूनियर्स हैं, दे आर ऑल्सो लुकिंग अप टू मी एज अ लीडर। I have to do justice to my chair of CHRO, where I have to represent the right picture. I will represent the right picture without a fear of the repercussions. I represented that picture, but then क्या होता है कि everybody wants people to work for them and as per their style. नई बात बनी, but I think I sleep at peace in the night that nobody can question on my integrity, my value system, my honesty। जो हमारे पिताजी ने और जो फौज ने हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है ना, वो चीज आज भी जिंदा है कि मैं अपने सामने तो पाप होता हुआ नहीं देख सकता। वेदर आई कैन, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट और नॉट, आई डोंट डू मॉरल पुलिसिंग, बट देन इग्नोर भी नहीं करता हूँ मैं। तो जो सही है, जो सही है भाई, अब मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ। अगर ऐसे बहुत कम लोगों में होता है कि दे डोंट सी द इनजस्टिस इन फ्रंट ऑफ यू, अदरवाइज आजकल लोगों ने आंखें बंद करना स्टार्ट कर ही दी। मे बी अब लॉट ऑफ पीपल आर हम्म। इनसिक्योर कि यार मेरे को ग्रो करना है, या फिर मेरे को इसी ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऐसा सीन आता है कि यार भगवान ने इस लायक तो बना रखा है कि कुछ ना कुछ करके, तो इसीलिए बस हो गया, बी
ट्रू टू द जॉब, कर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति no, गलत मत करो. If you are doing right, people will come for your support. Even if people don't come for your support, your inner conscience, will always be there that Janish don't. I took some bold decisions in my life. मुझे लगता था कि यार गलत किया, because there are my family members who also get affected sometimes. But then my wife always stood with me. मैं उससे पूछा था, यार तुम बताओ तुम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में. अरे तुमने सही किया. अब वो सही जो है वो मेरे तरीके से सही है, बट अगर मैं किसी मैं झंडा लेके खड़े हो टेलीग्राम जाएंगे. एक्सट्रीम किसी में भी नहीं हूँ, बट देन आई have fair amount of tolerance limit, I have fair amount of absorption limit, but then one point वो जो एक थिन लाइन जब क्रॉस हो जाती तो देन उसके बाद देन आई. तो अगर मैं बात करूं आपका 28 years old, आप दोबारा से उस टाइम पे हो, एक चीज क्या बोलना चाहोगे जब वो उस टाइम पे करियर बिल्ड स्टार्ट. I would like to tell that person that don't get out of the inferiority complex. Do not look at the outer presentation these people are, or your colleagues, or your samaj, or your society, whatever you are surrounded with. Don't get intimidated by their personalities, their skills, finesse. uh, don't get into inferiority complex. I have struggled with that inferiority career, and the reasons were, of course, communication skill was below average, looks were below average, are below average. वो कहते हैं ना कि अच्छा दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसके लिए भी पैसा लगता है. करेक्ट. वो किसी ने बताया, तो वो जो ज्ञान था ना उस टाइम पे नहीं था. तो सडनली आप मतलब यू कैन इमेजिन अ टिपिकल रॉ प्रोफेशनल गेटिंग इनटू अ वेरी पॉलिश प्रोफेशनल वर्ल्ड. तो उस टाइम पे मैंने बहुत अकेलापन महसूस किया था, बहुत अपने आप को इनसिक्योर नहीं, इंफीरियर फीलिंग रहती थी. माय नॉर्मल पर्सनालिटी इज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, हैप्पी गो लकी पर्सन, बट देन वो खुलने में मेरे को टाइम लगा, जैसा मैं कॉलेज में था. बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके मैं बहुत ही क्लोज हो गया था, बहुत ही चुप रहने लगा था, बिकॉज मुंह खोलेंगे तो हमारे में तो वो फिनिश है ही नहीं. बट और देन ये आई गेस लोगों के पीछे बनाया भी जाता है, पर्सपेक्टिव डाल दिया जाता है कि तुम्हारे में वो है नहीं, होता है, बट हम दूसरों को देख के खुद ही अपने अंदर रख लेते हैं कि यार हमारे में है ही नहीं, बट होता है. yes, so my 28-year-old actually ruined at that point of time. My mindset was that I was not coming from a very big मतलब ए क्लास फैमिली और सोसाइटी जिसमें मैंने दिया. जब पहली बार मैं 5 स्टार होटल में गया था फॉर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस, तो भी मैं कॉन्शियस था थोड़ा सा. 5 स्टार में पहली बार घुस रहा था, कैसे वॉक करना है, कैसे चलना है, क्या पहन के जाना है, दिमाग के पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. जब पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा था आफ्टर माय फर्स्ट जॉब, उस टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन थे. लाइन में लगना है, लाइन में लगेंगे, सब एकदम देख रहे थे, बिकॉज यू बिकम एक्स्ट्रा कॉशियस व्हेन यू आर इन अ प्लेस वेयर यू आर नॉट कंफर्टेबल. तो मैंने वो सारी चीज़ें फील करी है उस टाइम. सिम्बोसिस में पहले 3-4 महीने में, बिकॉज आई वाज नॉट, मेरे को अच्छा. कल्चरल शॉक था वहाँ पर. सोनीपत से मैकेनिकल इंजीनियर गया हो, इंग्लिश तो छोड़ो, जो थोड़ी बहुत आती थी, और आप सडनली पुणे में लैंड कर, जो आज मैं बोलता हूँ ना, मेरे जो कॉलेज के बैचमेट्स थे सारे इतने बढ़िया पर्सनालिटीज, कम्युनिकेटर, और उनके बीच में आप बैठते हो तो थोड़ा सा तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो. तो मैं अपने उस टाइम के बच्चे को यही बोलना चाहूंगा कि भाई ये जो चीज है ना, ये तेरे में सॉलिड है. जो पढ़ा है किसी से भी बात, कोई फिलोसफी, कोई जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है, ठीक है, अभी समय लगेगा थोड़ा तराशने में, और वो 2 साल उन दोस्तों, उन पीयर्स, जाने अनजाने में बहुत कुछ सिखाया मुझे. मेरे को बहुत, मेरी पर्सनालिटी को बहुत इन्फ्लुएंस किया उन्होंने. मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब मैं वहां से निकला, कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग था, और अब फिर इंडस्ट्री में आने धीरे 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 अब जाके मैं वो लगता है कि यार ये कॉन्फिडेंस अगर मेरे में जब मैं 28 साल का था, तो शायद और अच्छा मुकाम. That's a destiny. So in the end segment, छोटा 5 क्वेश्चन का रैपिड फायर राउंड है, और ये मतलब ऑप्शंस है 6 क्वेश्चन, एंड दिस इज फॉर दी फॉर सेम 28 year old के जो लड़के बच्चे हैं,
जो अभी जॉब स्विच कर रहे हैं या उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी में उनके हिसाब से बनाया है। तो पहला है कल्चर फिट वर्सेस स्किल फिट यू विल हायर फॉर। Culture, Notice period buyouts, ethical or not. situation, ESOPs for employee, real wealth or illusion. mostly illusion. One book every founder must read before their first hire. First, break all the rules. Must break all the rules. Okay. Remote work is for Indian company future or forced. Future. Hustle culture, glorified burnout or competitive edge. That's it. That's it. That's come to an end. So I hope they all were justified question. Wonderful यार. I think आपको लगा भी होगा ना. I enjoyed and मैं flow में बात कर रहा था. बड़ा Yes. मजा आया. बहुत अच्छा लगा. बहुत ही relevant questions and I think a lot of मैंने काफ़ी podcasts किए हैं. बट इस पॉडकास्ट की मैं यही खासियत बताऊंगा कि आपने वो चीज़ें टच करी हैं जो बहुत कम टच होती हैं. और ये पहलू काफ़ी लीडर्स का हम जान ही नहीं पाते हैं बिकॉज हम सबको लगता है कि ये अलग ही ब्रीड है भाई, ये तो कुछ अलग ही आदमी है. बट हम सब एक ही उससे निकले हुए हैं. हालात, सिचुएशन, सिनारियोज को हम किस तरीके से हमने रिस्पॉन्ड किया, हर आदमी ने अलग तरीके से वो सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड किया तो एक अलग ट्रेजिटरी बनी. तो वो सारी लर्निंग्स अगर किसी आज के टाइम पे जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अलग अलग आदमी तक पहुंचा रहे हैं कि देयर इज़ नॉट ओनली वन वे टू